हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट पावर इंडिया, जहां तैयारी होती है स्मार्ट और फोकस्ड। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम? इफ yes, then this announcement is a game changer for you. We are introducing our lecture series, free bilingual lecture series on environment by Shankar IS Academy. In these lectures, we will be covering all the chapters of Shankar IS environment, and also the current affairs which will be important for UPSC 2026 or your state civil services examination. So let us begin. Before we start chapter number 1, it is very important for us to understand which all chapters are included, because वो chapter की understanding हमें एक overall understanding देगा कि syllabus कितना wide है. So the chapter number 1 is ecology, which includes history of ecology, environment and its components and levels of organizations in ecology. इसमें हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इकोलॉजी होता क्या है, इंडिविजुअल क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, इकोटोन क्या होता है. सो विल बी अंडरस्टैंडिंग सच टॉपिक्स इन दिस स्मॉल चैप्टर विच फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द environment as a subject. Then the second chapter is functions of an ecosystem, कि ecosystem जो एक ecosystem जो होता है उसके functions क्या हैं, किस प्रकार के functions होते हैं, energy flow क्या होता है, what is a food chain, what types of food web are there, what are ecological pyramids, what are pollutants and their trophic levels, what is biotic interaction and biogeochemical cycle, ecological succession. What I would advise you is, after listening to the videos, after watching the videos, you go through the chapters also. फिर वो क्या होगा कि आपको जो similar terminologies मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, वही same terminologies जब आप बुक में पढ़ोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा understanding होगा, आपका revision भी होगा, and then you'll be able to recollect during your test series or during your mock exams or even the final exam. Then we will do two types of ecosystem. One is terrestrial ecosystem, then is aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem में हम पढ़ेंगे टुंड्रा के बारे में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, डिजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है. And when we do the aquatic ecosystem, we'll be understanding in depth topics like aquatic organisms, lake ecology, eutrophication, harmful algal booms, coral reefs, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगा प्रोग्राम, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हम इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंडर हम पढ़ेंगे. देन हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि एवरी ईयर इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट. इसमें से कुछ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स के पे आते होते हैं, सो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अगेन. इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में हम पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इवन लाइट पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, एसिड रेन, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की कैटेगराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बायो रेमिडिएशन क्या होता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है. वी विल बी स्टडिंग अबाउट all such matters. Then we will discuss certain environmental issues such as sand mining in India, the environmental challenges faced by Indian Himalayan region, genetically engineered trees, impact of radiation from mobile phone towers on human beings and wildlife. Then we will also be studying environment impact assessment. इसके components क्या है, elements क्या हैं, उसका इंडियन सिस्टम में ड्रॉबैक्स क्या है और recommendations क्या हैं. Then the next part is biodiversity. बायोडाइवर्सिटी में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है. इसमें ज़्यादा फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स कम हैं, फैक्ट्स ज़्यादा हैं. सो बायोडाइवर्सिटी को मैं जो फर्स्ट हमने इकोलॉजी पे चैप्टर पार्ट पढ़ा है, उससे मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट मानती हूँ, बिकॉज द फैक्ट्स आर मोर देन द कॉन्सेप्ट्स. इन पार्ट वन द कॉन्सेप्ट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. आप कॉन्सेप्ट को याद रखो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो कॉन्सेप्ट याद भी रहता है. लेकिन बायोडाइवर्सिटी में आपको बहुत सारी मेमोराइजेशन करना पड़ता है छोटे छोटे फैक्ट्स का.
तो बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, इसमें रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती हैं इकोसिस्टम में, इंडियन बायोडाइवर्सिटी का क्या लैंडस्केप है, क्या फौना कहाँ पे रिच है, फ्लोरल डाइवर्सिटी कहाँ है, वाइल्ड लाइफ कहाँ है, इंडियन फॉरेस्ट में कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं, एंड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, द डिफरेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व इंडियन फॉरेस्ट उनके बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, मरीन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, सच एज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, सिक्योर हिमालय, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हंगूल, सी टर्टल प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देन द थर्ड पार्ट इज अगेन इजी, बट आपको थर्ड पार्ट के साथ करंट भी करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट इन्वायरमेंट में करंट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपको एक बारी बेस अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसके बाद जो क्वेश्चंस जो ज़्यादातर होते हैं वो करंट से होते हैं। स्टैटिक पोर्शन में से कुछ 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट करंट से भी आते हैं। So it is very important that you simultaneously prepare current affairs as well as understand the static portion जो कि अनचेंजिंग है और जो आपको उस एक बेस आपका बनाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डिफरेंट टॉपिक्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, क्लाइमेट फोर्सिंग्स क्या होता है, क्लाइमेट टिपिंग क्या होता है, हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे, ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है ऑन एग्रीकल्चर, ऑन वाटर, ऑन इकोसिस्टम, ऑन बायोडाइवर्सिटी, ऑन हेल्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कैसे करना है, व्हाट आर द डिफरेंट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जांपल कार्बन सिंक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन क्रेडिट, कार्बन ऑफसेटिंग, एटसेट्रा। इसमें हम रीन्यूएबल एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, फेम इंडिया प्रोग्राम है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है, क्रिटिकल इनिशिएटिव्स है। हम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, समिट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जितनी भी रीसेंट समिट्स हैं उनके बारे भी पढ़ेंगे, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। देन द नेक्स्ट पार्ट विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स को देखा जाए तो वो है कि एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, पर्मा कल्चर के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप रोटेशन, फार्मिंग सिस्टम्स क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल इरोजन क्या है। वी विल बी covering all these aspects. Then the last part which is the institutions and measures. सो इसमें हम डिफरेंट जो मिशंस रहे हैं गवर्नमेंट के आज तक और अभी जो करंट मिशंस हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे। कई बारी पुराने मिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो यू शुड नॉट स्किप दिस पार्ट थिंकिंग दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो बिकॉज अदरवाइज भी अगर आप ये सोचिए कि अगर कोई मिशन है वो छोटे स्पैन के लिए नहीं होता है, इट इज़ यूजुअली कवरिंग 10 to 30 years। सो वो ऑब्वियसली अगर 2015 में भी कोई मिशन लॉन्च किया है दैट स्टिल बिकम्स रेलिवेंट, बिकॉज वो अभी अगर सपोज 15 years का मिशन है, सो वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द मिशन, तो उसका इवेल्युएशन गवर्नमेंट पूछ सकती है एग्जाम में कि उसका इवेल्युएशन, हैव वी अचीव्ड दैट पर्टिकुलर goal of that particular mission. So we will be covering different missions, we will be covering different environmental organizations, national organizations and international organizations and conventions. Then we will cover certain environment issues, health effects, and I will also be covering glossary in this series because glossary में terminologies के कुछ meanings होते हैं. So it helps you in better understanding, and there is no harm in giving 1 or 2 extra lectures on a topic जिससे आपकी understanding better हो.
सो आई होप ये आपको इंटिमिडेट नहीं करा है इतना वाइड सिलेबस, एंड इट हैज जस्ट गिवन यू वन अंडरस्टैंडिंग. इफ यू कवर एटलीस्ट one chapter a day or one chapter in 2 days, you will be having a thorough understanding of environment as a subject, और आपके लिए current affairs करना भी easy हो जाएगा और exam में questions crack करना भी. So thank you everyone for watching this video. Please like, share and subscribe, and we will continue with our next chapter in the next lecture. Thank you.